Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering section number 199, 200 and 201 in this video from ICAI material. In case you're new to this channel, I upload videos every day sharp at 7 pm. And the link of notes which I use in the videos are mentioned in the description box below. Also, the videos which have already been uploaded till date, the playlist of these videos is also mentioned in the description box. I have created different playlists for all the videos that we have covered till date. I hope you will find them useful. Do check them out from the description box below. Without wasting any further time, let's start with section 199 first, which is recovery of managerial remuneration in certain cases. This section is given on page number 2.25 of the module. So, recovery ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हमें जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हमने पे किया है उसकी रिकवरी करनी पड़ जाए. तो ऐसे कौन से केसेस है जब हमें रिकवरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सेक्शन 199 के अंदर मेंशन्ड है. दिस मे हैपन वेयर अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू रीस्टेट its financial statements for any period due to fraud or non-compliance with any requirement under Companies Act 2013 and the rules made thereunder. कंपनी ने कंपनीज एक्ट के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनका कंप्लायंस नहीं किया, या फिर कंपनी ने फ्रॉड किया जिसकी वजह से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करने की रिक्वायरमेंट आ रही है. ठीक है, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रीस्टेटमेंट होती है बिकॉज ऑफ फ्रॉड या फिर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी सेक्शंस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और रूल्स, then in that particular case there is a requirement to restate the financial statements. Now when this happens, the company is duty bound to recover from any past or present managing director or whole-time director or manager or CEO by whatever name called, who received the excess remuneration including stock option during the period for which the financial statements are required to be restated. As we all know, we have studied section 197, section 198. If you haven't seen those videos, you can check out them for conceptual clarity and coverage, and I'll be referring to that section over here. Since आपने section 197, 198 पढ़ा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है दैट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट्स विच इज़ given in section 198. The method for calculating the net profits is given under section 198, and as per that net profit or based on that net profit, a specified or certain percentage is given as a managerial remuneration, right? Managerial remuneration and other remuneration as well. So in that particular case, just think about it. अगर आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट हो रहे हैं, that means there are chances that net profit will also change as it was stated earlier, right? So in that particular case there will be a requirement to compute the managerial remuneration also once again, which means that there are chances that there might be some reduction in the managerial remuneration because of decline in the net profits. Because of that reason, we need to have one section whereby we can recover the already paid to the managerial personals. So this is the section for recovery जहाँ पर ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रीस्टेटमेंट हो रहा है और रीस्टेटमेंट की वजह से देर आर चांसेस कि नेट प्रॉफिट का भी रीस्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीईओ से जो भी एक्सेस रेम्यूनरेशन उनको पे हुआ है वो वापस लेना पड़ेगा, राइट? तो हो सकता है वो एमडी, डब्ल्यूटीडी या सीईओ अभी भी कंपनी में है, और हो सकता है वो पहले था लेकिन आज की डेट पे एमडी, डब्ल्यूटीडी या सीईओ नहीं है. सो इसीलिए वर्ड लिखा है रिकवर फ्रॉम एनी पास्ट और प्रेजेंट, क्योंकि पुराने वाले फाइनेंशियल्स का ही रीस्टेटमेंट हो रहा होगा. जब पुराने वालों का हो रहा होगा तो हो सकता है उस टाइम पर एमडी, डब्ल्यूटीडी या सीईओ कोई और होगा. तो दैट इज़ वाई द वर्ड इज रिटर्न एनी पास्ट और प्रेजेंट एमडी, डब्ल्यूटीडी और सीईओ.
अब जिसने एक्सेस रेम्यूनरेशन रिसीव किया है उसको वो वापस देना पड़ेगा. उससे रिकवरी करने के लिए कंपनी ड्यूटी बाउंड हो जाती है बिकॉज ऑफ सेक्शन 199. The excess remuneration to be recovered shall be the difference between the actual amount of remuneration received by such person and the remuneration that would have been payable to him as per the restatement of financial statements. So जितना देना चाहिए था और जितना दे दिया उसके बीच में जो भी डिफरेंस है दैट इज़ योर एक्सेस, उसी को बस रिकवर करना है. ठीक है. सो it may be noted that the recovery of remuneration does not prejudice, that is impair, any liability that may be incurred under the provisions of Companies Act 2013 or under any other law for the time being in force. In other words, the defaulting person because of whom fraud या फिर non-compliance took place and the financial statements were made incorrectly at that time, even though has repaid the excess remuneration, shall not be escaped from any liability that may be incurred under the provisions of the Companies Act 2013 or under any other law. अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि किसी भी ऑफिसर मतलब किसी भी CEO MD या फिर WTD की वजह से ये फ्रॉड हुआ था, ये नॉन कंप्लायंसेस हुए थे, दैट पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट. सो उस पर्सन पे ऑब्वियस ही बात है कॉन्ट्रावेंशन की वजह से पेनल्टीज, इम्प्रिजनमेंट ये सब लग सकता है. तो इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने वो एक्सेस रेम्यूनरेशन वापस दे दिया, उसकी रिकवरी हो गई टू द कंपनी, दैट डज नॉट मीन कि आप उन कॉन्ट्रावेंशंस पे जो पेनल्टी लगती हैं उससे बच जाओगे. नहीं नहीं, वो तो लगेगी, ये रिकवरी भी करनी पड़ेगी. इसलिए लिखा है कि जो ये रिकवरी का मैकेनिज्म है, प्रोविज़न है, ये प्रेजुडिस नहीं करता, इम्पेयर नहीं करता किसी भी लायबिलिटी को जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनकर हो रही है या फिर किसी भी और लॉ में हो रही है. तो आप उसमें ये नहीं कह सकते जी मैंने तो एक्सेस रेम्यूनरेशन रीपे कर दिया है, विच मीन्स आई डू नॉट रिक्वायर टू पे एनी लायबिलिटी बिकॉज मुझे तो कोई एक्सेस पे ही नहीं हुआ. देखो, आप उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फ्रॉड दैट वॉज कमिटेड बिकॉज ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड एज दे वर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड. So in that particular case you will have to bear the consequences for this default. I hope we are clear with this section. This is a very simple section but yet important. By not because of not only for the exam purpose it is important, but I think this provision we should know. Like रिकवरी हो सकती है, नहीं हो सकती, यही नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू आंसर एनी कंसल्टेंसी इन रिगार्डिंग दिस. मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का भी कोई प्रोविजन है विच स्टेट्स कि अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट हो रहे हैं, तो जब भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट हो रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारे पास कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 199 जिसमें लिखा हुआ है कि अगर रीस्टेटमेंट होता है और वो रीस्टेटमेंट किसी फ्रॉड या नॉन कॉन्ट्रावेंशन नॉन कंप्लायंस फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस की वजह से रीस्टेटमेंट हो रहा है तो उस केस में सेक्शन 199 अप्लाई हो जाएगा. सो जब भी आप कोई भी ऐसा केस देखो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए सेक्शन 199. अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन 200 मतलब 200 पर. 200 इज़ गिवन ऑन पेज नंबर, दिस इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 2.12. Here it is. Consideration of certain parameters by a company while fixing the limit with regard to remuneration in case of inadequate profits. अब हमने लिमिट पढ़ी थी सेक्शन 197 के अंदर कि जब भी inadequate profits होते हैं या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की लिमिट रहती है. ठीक है. सो अब इसमें बता रहे हैं कि ये लिमिट सेट करने के लिए क्या पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है. कंपनी कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर करती है जब भी वो रेम्यूनरेशन की लिमिट फिक्स कर रही होती है इन केस कंपनी के अंदर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स होते हैं. सो दिस इज एज पर सेक्शन 200. सेक्शन 200 ऑफ द एक्ट इज़ इंस्ट्रक्टिव इन नेचर, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ये वाला सेक्शन. According to this section, a company needs to take care of certain parameters and may adopt an administrative ceiling as it may deem fit within the statutory ceiling with regard to fixing of managerial remuneration where it has inadequate or no profits.
कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट आपको पता है कि मैक्सिमम आप इतना पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उससे कम भी तो पे कर सकते हो ना। तो कम पे करने के लिए भी आपको एक सीलिंग बनानी पड़ेगी, तो वो सीलिंग आप बना सकते हो, आप इन पैरामीटर्स को कंसिडर करके उस सीलिंग को बना सकते हो। सो however, effective from 12th of September 2018, in such cases the company is not required to seek any approval from the central government. पहले अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती थी, अब there is no approval requirement. Section 200 states that notwithstanding anything contained in this chapter, a company may, while according its approval under section 196 to any appointment or to any remuneration under section 197 in respect of cases where the company has inadequate or no profits, fix the remuneration within the limits specified in this act at such amount or percentage of profits of the company as it may deem fit. So while fixing such remuneration, the company shall have regard to first द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सी आपको जब रेम्यूनरेशन पे करना है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के हालात कैसे हैं फाइनेंशियली, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, द रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय एन इंडिविजुअल कंसर्न्ड इन एनी अदर कैपेसिटी। अब यही पर्सन किसी और कैपेसिटी में भी रेम्यूनरेशन अगर ड्रॉ कर रहा है, कोई कमीशन ड्रॉ कर रहा है, तो उसको भी कंसिडर करो कि कितना ड्रॉ कर रहा है, वेदर इट इज़ एडिक्वेट, वेदर इट इज़ इन एक्सेस, क्या चीज़ है, ठीक है। थर्ड, द रेम्यूनरेशन और कमीशन ड्रॉन बाय हिम फ्रॉम एनी अदर कंपनी। वो किसी और कंपनी से रेम्यूनरेशन ले रहा है, किसी और कंपनी से कमीशन ले रहा है, तो कितना कितना कमीशन ले रहा है, उस चीज़ को भी एक बारी को कंसिडर करो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस विजुअल कंसर्न। अब जिसको आप ये रेम्यूनरेशन पे करने की बात कर रहे हो, उसकी कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस देखो, एक्सपीरियंस देखो। अगर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप उसको ज़्यादा पे करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको कम पे करोगे तो हो सकता है वो छोड़ दे, हो सकता है उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ना रहे बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, हिज क्वालिफिकेशंस। उसको हो सकता है कहीं और अगर वो जॉब करे तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू नीड टू चेक उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर अच्छा है तो यू विल पे बेटर, राइट। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब कहाँ पर होंगे? रूल में। तो रूल कौन सा है? रूल 6। सो रूल 6 के अंदर आपके कुछ और प्रिस्क्राइब मैटर्स हैं जो कि 5 हैं। पहला, the financial and the operating performance of the company during the 3 preceding financial year। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रह रही है और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंसेस कैसे अरेंज हो पा रहे हैं, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग हो पा रही है कंपनी, और उसकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, किस तरीके से वो ऑपरेट कर रही है, काम चल रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो पिछले 3 साल के आप कंसिडर करो कि 3 साल में कैसा आपकी पोजीशन चल रही है कंपनी की। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस। जितना रेम्यूनरेशन दे रहे हो उतनी परफॉर्मेंस भी हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि रेम्यूनरेशन तो बहुत ज़्यादा, परफॉर्मेंस बहुत कम है। सो रिलेशनशिप चेक करो कि जितना रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वेदर इट इज़ वर्थ इट, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद द कंपनी, ideally by a rating methodology which compares the remuneration of directors to that of other directors on the board and employees or executives of the company। So basically proportionally चेक करो कि सभी को जो remuneration मिल रहा है उसको compare करो whether it is proportionately somewhere equal। ऐसा तो नहीं है बहुत ही कम दे रहे हो आप इनको, तो उस चीज़ के लिए आपको प्रोफेशनैलिटी का प्रिंसिपल लगाकर आपको चेक करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा रेम्यूनरेशंस को, डायरेक्टर्स का दूसरे डायरेक्टर्स के साथ, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के साथ, जिनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो सकता है सेम हो, उनके साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो। Whether remuneration policy for directors differs from the remuneration policy of other employees and if so, an explanation for the difference। आप एम्प्लॉयज़ को सेम क्वालिफिकेशंस हैं, सेम एक्सपीरियंस है, यू गिविंग पेइंग लेस, द अदर पर्सन इज़ गेटिंग मोर, वाई? डायरेक्टर्स को क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है, डायरेक्टर्स की पॉलिसीज़ डिफरेंट क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़, इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाए। अगर डिफरेंस है तो एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए इस पर। द सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय द डायरेक्टर इन ऑप्शन as at
दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. सो डायरेक्टर्स के पास कितनी कितनी सिक्योरिटीज़ हैं, कितने ऑप्शंस हैं, शेयर्स की डिटेल, कितने प्लेज कर दिए, कितने एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनके पास शेयर्स हैं, कितने प्लेज कर दिए. तो ये सब डिटेल्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा वाइल फिक्सिंग द लिमिट फॉर रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. कब? जब इनएडिक्वेट या फिर प्रॉफिट्स कंपनी के अंदर. सो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन 200 किस बारे में है? कुछ पैरामीटर्स बता रहा है जो कि इंस्ट्रक्टिव इन नेचर है. क्या पैरामीटर्स बता रहा है कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए इन केस द कंपनी इज हैविंग नो प्रॉफिट्स और लो प्रॉफिट्स, राइट. तो इस केस में आपको क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ेगा वाइल फिक्सिंग अ लिमिट? So first you will consider the financial position of the company, then the remuneration or commission which is drawn by that individual either in other capacity in the same company or from other companies. Next is the professional qualifications and experience that person is holding, and fifth point is the other prescribed ones which are mentioned under rule 6. What are these 5 things? First, the financial and operating performance of the company during the 3 preceding financial years. Then we have the relationship between whom? Between the remuneration and the performance. Third one is the principle of proportionality of remuneration within the company, like by comparing the remuneration of directors to that of the employees or other directors or executives. And fourth one is the remuneration policy for directors, whether it is different for the employees or whether it is same. If it is different, explanation for the same is required. And the details of shares pledged and options held, securities held by the directors during at the end of the preceding financial year, that also needs to be taken care of or considered while fixing the remuneration by the company. So this is all about section 200. Now we'll be covering section 201. I hope you're clear with 2 sections that we have covered till now, section 199 and section 200. Section 201 is given on page number 2.28. I know आज थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, but these are the miscellaneous sections which were left, so I thought let's cover them up as well. So page number 2.28, forms of and procedure in relation to certain applications, section 201. Section 201 is about forms of and the procedure in relation to certain applications. So section 201 of the Act contains the provisions which need to be followed for seeking approval from the central government. If an application is made under section 196 for the appointment of a person as MD who has attained the age of 70 years, if you remember section 196, we have covered this during our initially we started with the introduction and covered section 196. It is part 2 of this chapter. You may refer to that video if you have not seen section 196. So yeah, let's continue. Section 196 में भी studied कि अगर किसी की age 70 years होती है तो you can appoint that person as well. वैसे तो नहीं कर सकते but कर सकते हो अगर आपका कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है. अगर कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ बट ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर भी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पर वही चीज़ बोली हुई है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जहाँ पर भी अप्रूवल लेना पड़ता है उसके लिए आपको सेक्शन 201 के अंदर प्रोविजंस बताए हुए हैं. सो फॉर एग्जांपल 196 की अगर मैं बात करूँ कि जिस पर्सन ने 70 ईयर्स की एज अटेन कर ली है लेकिन उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलराइज नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज की स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही बट ऑर्डनरी की जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, दैट मीन्स वोट्स कास्ट इन फेवर इज मोर दैन दी वोट्स कास्ट अगेंस्ट, right. So non-passing of special resolution as before also contravenes schedule 5. Accordingly, for regularizing the appointment, the company would apply to the central government for approval based on the fact that majority of the shareholders are in favor of such appointment. सो अप्रूवल लेने जाओगे तो क्या बेसिस रहेगा अप्रूवल का? दैट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड बट द स्पेशल कुड नॉट बी पास. तो मेजॉरिटी तो मिल रही है बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है, मतलब 3/4 नहीं मिल रही है, ठीक है. तो इस बेसिस पर यू कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रोच द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल. नाउ so accordingly for regularizing the appointment of the company would apply to the CGE for approval based on the fact that majority of the shareholders are in favor of such appointment as they find this appointment to be most beneficial to the company. It may be noted that now no approval is required for managerial remuneration in any case,
राइट। कोई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, पहले हुआ करती थी बट अब देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू गेट CG अप्रूवल. Now what is the process for seeking approval as give. Now what is the process? अब ये तो बोल दी कि अप्रूवल लेना है, कैसे लेना है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, रूल 7 और सेक्शन 201 के अंदर दिया हुआ है. सो फर्स्ट इज मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अप्लाई. किस चीज़ के लिए? अप्रूवल के लिए. सो मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल. एवरी एप्लीकेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 196 शैल बी इन फॉर्म नंबर MR2. तो एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाती है? एप्लीकेशन MR2 फॉर्म के अंदर जाती है, विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 7 and shall be accompanied by the specified fee. Rule 7 also requires that every such application shall be made to CG within a period of how many days? 90 days. एप्लीकेशन कितने दिन के अंदर अंदर करनी है? जब भी आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो उसके 90 डेज के अंदर अंदर यू नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. कौन से फॉर्म के अंदर अप्रूवल लेना होता है? फॉर्म नंबर MR2. एप्लीकेशन किस में जाती है? फॉर्म नंबर MR2. कितने दिन में करना होता है? 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. गुड. Notice to members. Before any application is made by a company to the central government under section 196, before any application is made by the company to the central government under section 196, a general notice to the members of the company shall be issued by or on behalf of the company indicating the nature of application proposed to be made. किस तरीके की एप्लीकेशन आप कर रहे हो टू CG, उस चीज़ के लिए आपको एक जनरल नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को, जिसके अंदर आप बताओगे कि कौन सी एप्लीकेशन आप करने वाले हो, क्या नेचर है उस एप्लीकेशन का. फिर आ जाते हैं पब्लिकेशन ऑफ नोटिस. अब आपने नोटिस इशू किया है तो पब्लिश करना पड़ेगा. ये पब्लिश कैसे किया जाएगा? या तो आप एक न्यूज़पेपर ऐसा ले लो जो प्रिंसिपल लैंग्वेज हो उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का. जहाँ पर भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, प्रिंसिपल लैंग्वेज है, उस न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो. और साथ ही साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आप पब्लिश करवा दो और उस चीज़ को सर्कुलेट करा दो, उस न्यूज़पेपर को सर्कुलेट करा दो इन योर डिस्ट्रिक्ट. सो दिस विल बी अ पब्लिकेशन. मतलब आपको पब्लिश ऐसे करना है, आपको खुद से कंपनी को कुरियर, ईमेल ये सब नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ एडवर्टाइज़ करना है न्यूज़पेपर्स के अंदर, वो आपका नोटिस पब्लिश हो जाएगा. फिर लिखा हुआ है अटैचिंग ऑफ नोटिस विद द एप्लीकेशन. सो द कॉपीज ऑफ द नोटिस टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट बाय द कंपनी एज टू द ड्यू पब्लिकेशन देयर ऑफ शैल बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन. अब जब आप जो एप्लीकेशन आप CG को कर रहे हो इन फॉर्म MR2, उसके साथ आपको इस सर्टिफिकेट एक तो इस नोटिस की आपको कॉपी लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि आपने ये नोटिस इशू किया, अब आपने इसको पब्लिश किया है इन द न्यूज़पेपर, इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट लगा के देना पड़ेगा. सिर्फ नोटिस इशू करने से तो काम नहीं चलता ना, पब्लिश करना ज़रूरी होता है. तो इसीलिए इशू होने का प्लस पब्लिश करने का दोनों का आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा अलॉन्ग विद दी एप्लीकेशन टू CG इन फॉर्म MR2. सो हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 201 के अंदर हमने सेक्शन 201 के अंदर ये पढ़ा कि किस तरीके से अगर आपको CG को अप्लाई करना तो किस तरीके से करोगे. सबसे पहले तो फॉर्म नंबर पता होना चाहिए. MR2 है, कितने दिन के अंदर अंदर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यू विल फाइल दिस फॉर्म और अप्लाई टू दी CG, राइट. ठीक है. अब सेकेंड हमने पढ़ा कि अब आपको अप्लाई करना है, ठीक है, बट अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म MR2 के साथ दो और चीज़ें चाहिए. क्या क्या चाहिए? एक तो नोटिस की कॉपी चाहिए, दूसरा जिस भी न्यूज़पेपर्स में बेसिकली आपने न्यूज़पेपर्स में उसको पब्लिश करवाया होगा तो उस चीज़ का सर्टिफिकेट कि आपने पब्लिश करवाया है वो चाहिए. तो अब दो पॉइंट्स हमें अपने आप ही मिल गए, नोटिस और पब्लिकेशन. तो नोटिस की बात करें तो नोटिस, जनरल नोटिस आपको मेंबर्स को देना पड़ेगा जिसमें आप नेचर ऑफ एप्लीकेशन प्रपोज टू बी मेड है उसको आप बताओगे, ठीक है. तो इस नोटिस को आपको पब्लिश करना पड़ता है दो जगह. एक तो आपकी जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उस डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज, जो भी प्रिंसिपल लैंग्वेज है उस न्यूज़पेपर के अंदर, और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये पब्लिश करवाना पड़ेगा. अब आपका पब्लिश भी हो गया है, नोटिस भी इशू हो गया था, तो अब आप क्या करो, एप्लीकेशन के साथ साथ नोटिस की कॉपी और ये सर्टिफिकेट लगा दो कि आपने पब्लिश कर दिया है. सो दिस इज़ द प्रोसीजर, किस तरीके से आप CG को अप्लाई करते हो फॉर अप्रूवल. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस सेक्शन एज वेल. वी हैव कवर्ड टुडे सेक्शन 199, 201 and 200, right. So we have covered today section 199, section 200 and section 201. I hope आपको क्लियर हो गए होंगे ये वाले sections. So if you like the video, please give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to the channel in case you haven't yet.
Also, if you have any suggestions on any or on anything, uh, you can mention that in the comment section below, or if you have any specific topic requests, do let me know about them in the comment section. I will definitely try my best to cover those topics through videos in the coming days. And that's it. Yeah, that's all for today. Take care, and I'll see you in the next video tomorrow. Bye bye.